JJG. Those who are watching, please just acknowledge that you get hear me. My audio is clear and the video is clear. It's a great honor to do Guruji has chosen me for his satsang. It's a great opportunity to do a satsang of Guruji. I'm so honored and thank you so much for welcoming me and choosing me to do the satsang. Guruji was a Mahapurush. आज तक कोई महापुरुष ही नहीं हुआ, हमेशा महापुरुष ही हुआ। So when I take a rebirth, I want to be born with Guruji and be with Guruji all the time. Like Daud, Yogi-Ram was with Krishna, Lakshman was with Ram, Arjun was with Krishna. I want to be with him all the time, to be born as a sibling of Guruji. These are my wishes. Guruji, I want to take you to the era in my journey with the Divine and my love with the Divine from the year when I was in 1984. Everybody goes through a low period, patch. Even I went there. I'm unable to be there, she says. Chal Gajjal. Okay, Guruji. Acha. कहते ना होगा सबसे जो दूर करता है, ठीक है? चलो, सहारा चाहिए होता है, समझने को सहारा और पकड़ के हाथ करके आना है ना we both were in Jakarta. When we went to Jakarta, it was a Saturday. We reached and next morning, we reached to Guruji's mandir. Sunday wale din badi thodi people used to be there. Very few, 30, 35, maximum 40 people on a Sunday satsang. And we were all sitting over there. So somebody came and Guruji's kursi was there. एक बाबूजी की कुर्सी जो लकड़ी वाली हुआ करती थी, it was there. And somebody came and sat on the chair. Guruji आ गए. One could not believe their eyes. In early 30s, somebody, a young boy, is a Guru. सबने बोला वो गुरु है, वो गुरु है, माना वो गुरु. He was so young, so slim. Because sukkaya bandana na roti नहीं होती उसमें he looked like that. And he was wearing clothes a bit
light saffron color lungi kurta and he came and sat on the bed. One couldn't believe कि ये गुरु है, and I kept asking friends, Guruji, Munda Guruji, and that's how it was. I could not believe my eyes. Just after some time, she says, keep quiet, something different. And I just kept quiet and I thought to myself, चलो कोई बात नहीं, मुंडा गया है, कोई डर नहीं, गुरु नू ही बना लेने, अपनी उम्र के नाल ही चलेगा, असि बुढ़े होंगे, भी बुढ़ा हो जाएगा. But it didn't happen like that. And I said, चल, आज तो वही गुरु है मेरा. And I kept quiet, just looking down. So after some time, Guruji called out my name. I would never met him. Nobody knew. We were never introduced or something like that. And I said, "Ye kaun hai? Ye Guruji hai." Guruji कहते हैं, कमलेश, तू की सोच रही है? गुरुजी, तू गुरु लग गया. गुरुजी से तू नहीं लग गया, मैं तेरे लग गया. And it was true. दिल्ली में तो उस समय ख्याल में भी नहीं था कि एक गुरुजी है वहाँ पर, जलंधर में एक गुरु है. So that's how my journey started with him. And we were in Delhi, in Tholagua, in Arjun Vihar, opposite Golf Club. And that's how we went. I started my journey with him, and we all with him. उस जमाने में गुरुजी माला पहना करते थे, बहुत बड़ी माला हुआ करती, और माला पहनते गुरुजी बड़े जल के ग्लास आया करते थे, and Guruji used to dip that mala into it, और सबको वो जल जो था अमृत बन जाता था, and सबको पिलाया करते थे. जिसको जो जरूरत थी उनको पहले देते थे, जिन्हें बात की जरूरत थी उन्हें बाद में देते थे. कईयों को दोहरी भी पिला देते होते थे, तिलवरी भी पिला देते होते थे, अकॉर्डिंग टू जितनी उनकी नेसेसिटीज थी उस टाइम बनाया करते थे. इतने आया गुरुजी के पास और गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी, मेरा पुत्र नाम बहुत शरारती है. तो गुरुजी ने कहा अच्छा. गुरुजी ने जल प्रसाद बनाया, उन टाइम में स्टील के ग्लासेस में जल आया करता था और कांच के बड़े बड़े ग्लासेस में चाय प्रसाद बना करते थे. तो उन्होंने कहने लगा कि उन्होंने ली और माला उसमें डाली, डुबकी और उसको दे दी. कहते मैंने पीता पी, वो कहना मैंने पीता. और एक बड़ी सुनतल है, उन्हें सुनिया तो वो कहता कि, और गुरुजी की तरफ देख लिया. गुरुजी ने कहा कि आप पी लें, और वो कट कट करके पी लिया. गुरुजी ने क्या, क्यों तेनों अपनी वाली विस्की का स्वाद आया? तो ऐसे थे हमारे महात्मा, हमारे गुरुजी, जाने जानते, सब पहचानते थे, सब करते थे, और हर टाइम उनको पता होता था किसको क्या चाहिए. गुरुजी कहते सन, आज जो बंदा आया ना, ये मेरे कोल मन बनाया, आएगा, चीज़ें देगा, 2-3 महीने जुड़ेगा, फिर चला जाएगा. ये मेरे मन में नहीं आया. तो
गुरु जी को ये भी पता लग जाता था कि एक मंगना है या मनना है। गुरु जी कहते सन मैंने पता लग जाता है मनन वाला बंदा या मंगन वाला बंदा। थैंक यू गुरु जी, with such a long journey with you all, 36 years with you, I'm so happy कि at least हमने मांगा भी और आपने दिया भी, और हम मानने वालों से अभी तक जोड़ के रखा, ये आपकी कृपा है। गुरु जी जाने जानते, सब कुछ जानते होते थे। उस टाइम उस जमाने में हमको दिल्ली से हम लोग जलंधर ही जाया करते थे, and used to take at least from Tolakwan to ISBT, from ISBT old buses used to be, इनके शीशे नहीं, कांच टूटे हुए हैं, दरवाजे कोई नहीं, कुछ नहीं। गर्मियों में गर्मी लगती, सर्दियों में ठंडी हवा आती, गर्मियों में लोग still we used to go to meet Guru Ji over there. मेरे अंकल एयरफोर्स में थे, and वो बाहर चले जाते होते थे। जैसे ही वो जाते होते थे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती होती थी कि गड्डी बस पकड़ो और जलंधर चले जाओ, चाहे 2 के लिए, बिकॉज एयरफोर्स के लोग 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए बाहर जाते होते थे। तो ठीक है, और मैं अपना अपॉर्चुनिटी लेके पहुंच जाती होती थी। तो एक दिन हम जब वहाँ गए तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आ गया तो मैं चाहूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि आज रहेंगे, कल चली जाए। क्या है गुरु जी, मैं तो आगे को टूर में देखते चली गई थी, बिकॉज आई गॉट इन्फॉर्म एंड टेल हिम दैट वी गोइंग बैक। तो आई kept quiet, I stayed there overnight. मैंने कहते हैं इंजा है कि वो जितने पैसे उन्होंने जहाज खराब हो गया, तो कल आऊँगा, तो कल चले जाए। And when I went home next day, I reached there, and then I asked them, what happened? What happened? आप लेट क्यों हो गए? एक दिन बाद में आना था, एक दिन बाद में आए हो। कहते हैं जी कि मेरा जहाज खराब हो गया, जहाज खराब हो गया कि मैं इस वास्ते रुकना गया। सो दैट गुरु जी टोल्ड मी, और मुझे वहाँ पर रोक के रखा, और दैट वाज हाउ इट वाज। गुरु जी के साथ जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी। एक दिन हम गुरु जी के पास थे और बड़ी देर बैठे थे। गुरु जी के बहन के बच्चे आए, बच्चे आते होते थे, और कृष्णा बहन जी के बच्चे बहुत छोटे छोटे बड़े होते थे। एंड गौरव अंकल यूज्ड टू बी देयर समटाइम्स, छोटा या मुंडा, हार्डली 7-8 साल का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड निक्कर खाकी जी निक्कर पाए, चिट्टी कमीज पाए, कभी चक्का वो निकले, आता करता पीछे निकले। केयरफुल टाइम ही वॉज। एंड उनकी सिस्टर के बेटे भी आया करते थे वहाँ पर, और मैं कभी उनकी उसके ऊपर बैठ जाते थे, कभी गुरु जी की गोदी में, कंधे पे, और बैठ के गुरु जी ने गले से हाथ पा के मामा जी करते होते थे। And it was so, we used to feel so distant कि हाय कितने अच्छे इनके रिलेटिव्स हैं, and that's how it was. तो जब वो चले गए
तब मैंने गुरु जी से कहा, हाय गुरु जी, मुंडे जेड़े न तोड़े, ए मुंडे तनु मामा जी के कह सकते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं आपको मामा जी कह सकते, ऐसी क्या बात है? तो गुरु जी क्या लगे, ओहो अच्छा, हंसने लग पड़े। मैंने कहा गुरु जी, अगली बार जब हम पैदा होगा ना तो एक ही माँ से पैदा। गुरु जी बड़े मुस्कुराए और कहा लगे, गल है, कोई गल नहीं, ना छोटी जी गल है ये। गुरु जी चाय प्रसाद पी रहे थे, अपनी चाय मुझे दे दी और कहा, चाचा। तो गुरु संगत जी, गुरु जी की पी हुई चाय प्रसाद जो मिला वो मिला, कहते हैं कि अगले जन्म के किए उन्हें तुसी बहन भरा जाना। सो दैट वाज हाउ इट वाज। और गुरु जी के साथ हम ये रिश्ता तब से जुड़ा हुआ अभी तक चलता। एकदम हम बाहर बैठे हुए थे गुरु जी के पास और सारी इट वाज छुट्टी वाला दिन और बड़ी संगत चली गई थी। हम लोग 4-5 ही लोग बैठे हुए थे। तो गुरु जी ना बड़े लय में आते थे, बड़े मूड में आते थे, तो बहुत बातें किया करते थे। तो गुरु जी कहने लगे, हम लोग 2-4 लोग थे। तो गुरु जी कहने लगे कि आज तेनों में 10 इतवार का दर्शन करा गया। उस टाइम तो पता भी नहीं था अल्लाह उमर थी 10वां द्वार भी कोई होता है, बिल्कुल नहीं पता था। पता नहीं कैसे दिमाग में आया और गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी अब पर नहीं पता 10वां द्वार की ये ऐसा कुछ मैनू आंदा जाता नहीं, मैनू तुसी अपने दर्शन करवा जो तुसी हो। गुरु जी बहुत हंसने लग पड़े और गुरु जी ने कहा, और ऐसे ही शब्द उस टाइम भजन चल करते होते थे शंकर भगवान के। तो गुरु जी ने मेरे को बोला कि गुरु जी आंखें बंद हो गई और हम सब थी और पता नहीं किधर कैसे क्या चला। जब गुरु जी ने देखा तो हम गुरु जी सामने बैठे हुए थे, पर हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो मैं गुरु जी के कहने लगे कि आंखें बंद हो गई और हमको इतने बड़े बगीचे से ले गए, इतने झरने, इतने ब्यूटीफुल थिंग्स बता नहीं सकते, कितने अच्छी अच्छी गार्डन्स वगैरह में से ले गए। फिर उसके जाके आगे बहुत बड़े पहाड़, बर्फ के पहाड़, उसमें से ले गए। वहाँ हम गए, उसमें से ले जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ऐसे देखा तो सचखंड का प्रसाद सचखंड था और उड़ते गए, हम ऊपर ही होते गए, कभी पहाड़ियाँ, कभी सफेद, कभी कुछ दिखाई देने लगा। ऊपर हम जब हम पहुंचे देखा कि only white light is there and there is nothing, milky white light, and we are going up, flying. एक आगे जब हम पहुंचे शिव ऐसे लगा कि शिव भगवान बैठे थे, उनके ऊपर था आधा। कभी वो गुरु आए थे, कभी वो शिव जी
कुछ दिखाई दे, कभी कुछ दिखाई दे। तो दैट्स हाउ इट वाज। उसके बाद ऊपर उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए, कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ऐसे लगा कि जो हमने कपड़े वो नहीं है, सब एक चद्दर से आके लिपट जाती है और उसमें हम बैठे रहते हैं और भी उड़ जाते हैं, उड़ते रहते, उड़ते पता नहीं कितनी देर ऊपर उस व्हाइट लाइट के अंदर घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। And it was only white light and there was nothing else to be seen. तो तब देखा और गुरुजी बड़ी देर हो गई, शाम हो गई। जब हम वापस होश में आए तो गुरुजी सामने बैठे हुए और मुस्कुराते। तो गुरुजी कहते ना, सचखंड हो आई, देख लिया सचखंड की चीज होंगी। और वो जेड़े तेरे कपड़े उतर रहे सन, वो मैंने तेनों मोक्ष दे दिता। And that was the first thing, the best satsang of my life, it was with Guruji. Nothing said. I still remember and I get goosebumps कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ अपने जोड़ के रखा। हम लोग बड़ी देर जाया करते थे गुरुजी के पास में। जब गुरुजी के कोल जाते होते थे तो एक अंकल आए गुरुजी के पास और कहने लगे कि बड़ा पसीना पसीना है, बड़ी पुरानी बात है। ते उसको लोग कितों आए? कहते गुरुजी मैं फलाने फलाने पिंड तो आया। वो किवें आए हैं? मैं गुरुजी साइकिल तो आया। इतनी दूरों आया? कहा अच्छा भाई नो जल पढ़ते हो, जल प्रसाद दिया उसको। फिर थोड़ी देर बाद भाई ये 10-12 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, इन चार प्रसाद थक गया। So that was how it was every time the Jal Prasad started and we all were given Jal Prasad by the moment we went there, and the Chai Prasad was later given to us. एक बार ऐसा हुआ कि हम गुरुजी के पास गए and गुरुजी से कि कितने गुरुजी के दर्शन किए और जाने लगे। तो मैं कह उन दिनों में ना बड़ा वो कर्फ्यू लगा हुआ था और बड़ा उनका वो था क्या उसको कहते हैं, आतंकवादियों का शोर था। एंड लाइक देयर यूज्ड टू बी नो लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, कुत्ते भी मारते थे सब। और हमको 7:15 के 7:30 बज गए और गुरुजी के पास जाते हुए तो वहाँ पर जब गए तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैं क्या गुरुजी देर हो गई कि मैं जाऊँ वहाँ? गुरुजी कहने जा बाहर रिक्शा कर उधर से चल जा। तो मैं कहती गुरुजी I went and sat on the रिक्शे वाले ने कहा आप ना बैठ जा, and I was sat into the रिक्शे वाला and we went। और मैं वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर जब हम गई उसने गाने शुरू कर दिए शब्द से, भजन से, whatever it was। और पहुँचे मैंने कहते बहना कार आ गया, तारा कुंडा खड़काया और उसने मुझे अंदर भेज दिया। The next day I went back to Guruji। तो गुरुजी मैंने कहते ना को तेनों शब्द किवें लगे मेरे?
गुरु जी तुहाडे किस तरह तुम तो मैं इत्थे छोड़ के गई सा ते कहंदे ना गुरु सब कुछ कर देता तेनों इन्नी उहदे विच कलियां थोड़ी भेज देता। सो दैट वाज हाउ गुरु जी वाज अपने साथ अंग कहते हैं ना कि अंग संग रहते हैं, उस टाइम भी अंग संग रहते थे। एक गुरु मैं कुर्सी पे छोड़ के गई थी, दूसरा गुरु रिक्शा चला के मुझे से साथ लेकर आया। गुरु जी थोड़ी लीला परम्पार है, यू कैनॉट से कैनॉट डू एनीथिंग। जब हम तब आई वॉज इन वसंतगंज, फ्रॉम वसंतगंज I shifted to 31 सेक्टर और फिर वसंतगंज में था और फिर then I was here in गुड़गांव and नया नया पाम ड्राइव शुरू हुआ था। तो मैंने गुरु जी से मैंने कहा ये एक आंटी थी और बस और कुछ कोई लोग नहीं थे। Somebody came to my house और वो कहने लगे कि 4:15 का टाइम होगा। मैंने उसको कहा कि गुरु जी हाय हाय उन्होंने शिकायत लगाई कि इतने तो कोई भी नहीं रहता, मैं तो कल ही हो गई यहाँ बड़ी, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते नहीं हो जाएगा, नवी कॉलोनी है चलो। और मैं उसको गेट छोड़ने तक बाहर भी नहीं गई, बात अंदर से ही कर दिया। और अराउंड 6 o'clock when I came लिफ्ट के पास पहुंची तो सामने का दरवाज़ा खुला था, सामने का दरवाज़ा खुला था और बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था एंड सामान उनका बिखरा बुखरा पड़ा था। मैंने इतना एर की ना गैर की, चप्पलें उतारी और भाग के आ गई वापस में। भाग के मैं वापस आ गई तो मैंने देखा तो उनको कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी उनको कहा और वो आंटी बाहर से आई, शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल। तो मैंने कहा चलो कोई भी है, मिल तो गया है, कोई ना कोई तो मिला ही है। सो दैट्स हाउ इट वाज। एक संगत जो आज तक मेरे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। हेलो। तो जुड़ी हुई हूँ मैं उनके साथ। तो इस तरह पाम ड्राइव में हम लोगों ने चलाया और संगत बढ़ती गई। एक हम लोगों ने छोटा सा ग्रुप बनाया और ग्रुप अब बढ़ते गुरु जी की कृपा से 2 ग्रुप पाम ड्राइव के बन गए हैं। जय गुरु जी। और आसपास इतनी संगत है कि हद नहीं कहने के लिए। मैंने गुरु जी को कहा कि हाय गुरु जी, एक दिन गुरु जी को बैठे और कहा कि गुरु जी आ किकण है, सारी दुनिया ते ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਏ। ਅਰੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, सत्संगां ते जाए, सब कुछ करे। एंड मानो नहीं, उस दिन के बाद इतनी कृपा है गुरु जी की कि 3-3, 4-4 सत्संग, 2-2 सत्संग तो होते ही होते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव संगत इज सो ब्लेस्ड विद गुरु जी कि कहने की वो ही नहीं है। संगत जी जल प्रसाद और मंत्र जाप का जो है वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो पावरफुल। आई जस्ट कैनॉट टेल यू कि हाउ मच द जल प्रसाद इज। एक दिन शिल्पी और मैं, हम लोग दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में फ़ोन आया कि
आंटी मेरी ना, मौसा जी बड़े बीमार हैं, हॉस्पिटल वाले दाखिल नहीं कर रहे हैं और ही इज़ इन द लास्ट स्टेजेस, और कोई मतलब ही इज़ देयर, और पूरा लोअर पोर्शन उनका शुगर से इतना गल गया है कि नो हॉस्पिटल इज़ टेकिंग वांट्स टू एडमिट हिम, एंड ही वाज क्राइंग ऑन द फोन। मैं कह देख भैया, मैं तो मंदिर बड़े जा रही हूँ, सिर्फ तेरी अरदास ही कर सकती हूँ गुरु जी के सामने, और कुछ भी नहीं। हम मंदिर पहुँचे, शिल्पी और मैं बड़े मंदिर पहुँचे, और वहाँ मैंने बैठ के 11 बार उसके लिए मंत्र जाप किया। मैं कह गुरु जी, 35-34 साल का मुंडा है, उसको तुम आपने ठीक करना है। और जब हम लंगर वहाँ पर लंगर लेने के लिए गए तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ लंगर, मुझे एक बॉटल जल प्रसाद की चाहिए। वो बेचारे ने चुपचाप मुझे आके जल प्रसाद दे दी, और मैं वो जल प्रसाद बाहर समाधि से भी जल प्रसाद लेके हम वापस आए। मैंने उसको जल प्रसाद दिया, मैंने कहा एक तो पिला, और ये जो जल प्रसाद है जब वो सोने लगे, रात को डॉक्टर्स चले जाए, ये पूरा जल प्रसाद उसके जख्मों पे लगा दे, क्योंकि पूरा गला हुआ था, मतलब मांस निकलने लगा था, वैसे उसकी कंडीशन होगी। एंड उसके साथ हमने मंत्र जाप किया 1 घंटा। उसके बाद एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। 3 महीने बाद वो संगत जी मुझे मिलते हैं, और आप देखिए कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, एंड ही मेट मी, एंड जो डॉक्टर्स नहीं ले रहे थे, लास्ट स्टेज बिल्कुल, मतलब कि अब बचने का भी नहीं है, उसमें से वो जल प्रसाद के साथ ठीक हो गए। इट इज़, आई डोंट नो हुज फेथ इट वॉज, but it was a belief of Jal Prasad, how it works, how it does. परसों की बात है, हैदराबाद से मेरे फ़ोन आया कि मेरे देवर की बाईपास सर्जरी हुई है, एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल इन हैदराबाद। तो वहाँ मैंने उधर संगत को, आई नो द लॉकडाउन पीरियड वॉज देयर, तो मैंने संगत को फ़ोन किया वहाँ पर। मैंने कहा ऐसे ऐसे इस अपोलो हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई है, प्लीज़ आप उनको ना जल प्रसाद दे दो, क्योंकि वो नई संगत है, और छोटा सा स्वरूप भी दिया ना। तो वो तकिए के नीचे, एंड वहाँ पर गुरु जी की कृपा से संगत ने उनको जल प्रसाद भी पहुँचा दिया, स्वरूप भी पहुँचा दिया, सब कुछ पहुँचा दिया। और उसको, आंटी को मैंने बोला कि कुछ नहीं करो, सिर्फ मंत्र जाप, सारा टाइम तू बैठी हुई मंत्र जाप ही करती रहे, मंत्र जाप ही करती रहे, मंत्र जाप करती रहे। वो मंत्र जाप ही करती रही। और फिर कल मेरे को उसने फ़ोन किया कि मैं वहाँ पर वापस घर आ गए हैं, ही इज़ हेल एंड हार्टी एंड इज़ मूविंग अराउंड। तो ये गुरु जी है, गुरु जी बहुत कृपादार है, बहुत है। कहते हैं कि इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम लोग एम्पायर स्टेट में थे तो गुरु जी आए, देखिए गुरु जी आए, और वहाँ पर कमांडर शर्मा अंकल, सारे अंकल्स थे। तो गुरु जी आए और कमांडर और शर्मा अंकल को बड़े प्यार से देखा, बड़े प्यार से, इतने प्यार से देखा कि हद नहीं कहने की। तो मैंने और अपना एक हार गले से उतार के उनके गले में डाल दिया। तो दैट्स व्हाट ही वाज वंडरिंग कि अरे ये गुरुजी ये क्या है। तो मैंने पूछा कौन मुंडा है गावे, ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो नवा नवा आके आया है, फौजी है। मैं कहा अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ने इसका, गुरुजी इसको इतना प्यार दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं इतना मिला। जब उसने कहा कि ये फौजी है, मैंने कहा चल कोई डर नहीं, यू नो एट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एक ईर्षा आई कि उसको इतना प्यार मिल रहा है हमको नहीं। पर नहीं,
एक जैसे माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, सबको बराबर का प्यार मिलता है, इस तरह गुरु जी हमारे भी हैं और पूरा दे रहे हैं, प्यार करते हैं। तो ये मत समझिएगा कि गुरु जी प्यार नहीं करते, सबको उतना ही प्यार करते हैं जितना पुरानी संगत को करते हैं या नई संगत को करते हैं। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि गुरु जी पुरानी संगत को कर रहे हैं या नई संगत को कर रहे हैं। तो इसलिए आप निष्काम गुरु जी के पास जाया कीजिए, निष्काम कर दीजिए। आजकल कोरोना चल रहा है, तो मैं तो कहती हूँ पुराने ज़माने में जब हमारी माएँ रोटी पकाया करती थी चूल्हे में, तो नानी दादी को देखा, एक लोहे की फूकनी हुआ करती थी जिससे ब्लो करके आग को रिकिंडल करते होते थे। बुझती वाली आग को फूकनी नो मार मार के हवा कर करके आग को रिकिंडल करते होते थे। तो गुरु जी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप भगवान हैं, तो प्लीज़ मेरी ये कृपा है कि आप भी वो फूकनी लो और कोरोना वायरस को प्लीज़ हटा दीजिएगा। उस फूकनी से फूका मार मार के, ताकि पूरी दुनिया में शांति हो जाए और मंदिर खुले, गुरुद्वारे खुले, सब खुले, सब, और हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। संगत सत्संग तो हम करते हैं गुरु जी, पर मज़ा नहीं आता। आपे चाह बनाने, आपे भोग लगाने, आपे सब कुछ खा जाने, पर अपने भैन भरा भी ते खान। क्योंकि गुरु जी जैसे केक बनाते हैं, हम छन्नी में मैदा डालते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, उसमें सारी चीज़ें डाल के छान के, और हम वो छना हुआ नीचे वैसा आता है, उस तरह गुरु जी आपने छान छान के, और हम अपनी संगत को इतना क्लोज कर दिया है कि अब एक दूसरे के बगैर दिल ही नहीं लगता। कहाँ दिल लगता है हमारा। रोज़ कहते हैं, फ़ोन भी करते हैं एक दूसरे को लाचारी से कि गुरु जी हाय, गुरु जी हाय, संगत बनाओ गुरु जी, दरवाजे खोलो। सो आपसे बहुत कृपा है गुरु जी, और आप हम सबको कृपा करें ताकि हम आपके चरणों में हाजिरी दे सके। तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, तो मैंने एक छोटी सी थी गुरु जी के बारे में, प्रार्थना करो। देयर इज so much of power in prayers. When we pray, God listens. When you pray, the doors open. When you pray, relationships get reorganized, reordered. When you pray, sickness get healed. When you pray, hopes get rekindled. When you pray, strength is renewed. When you pray, answers come. Don't lose faith. Please keep praying and praying. When you pray, we are praying for today, what we get. God is very faithful. A human being might not be very faithful, but God is very faithful. He answers our questions just at the right time. When we deserve it, He gives you.
दैट्स हाउ इट इज़। लास्ट सत्संग आई एम डूइंग इट। हम लोग जब जलंधर जाया करते थे गुरु जी के पास में, और बड़े थके टुट्टे होते थे। दिस इज़ द नई संगत, पुरानी संगत व्हाट इट इज़। हमने सिर्फ उनको एक साधु, सन्यासी, धर्मात्मा ये सब माना हुआ था, एंड नथिंग एल्स। तो एक दिन सत्संग ख़त्म हुआ तो हम लोग वहाँ पर संगत सारी चली गई, बिकॉज हम लोग आउट स्टेशन थे। तो जलंधर गुरु जी के पास हम लोग नीचे वहाँ बैठे रहते थे। वी यूज़ टू कम, सवेरे 9 बजे आते सी, राती 10 बजे तक वी यूज़ टू गो बैक। दोपहर को सारी संगत चली जानी और थक जाना, तो पर्स नीचे, सिर के नीचे लेट के रख के ना, और वहाँ लेट जाना गुरु जी सामने। गुरु जी थोड़ी चपकी ले लिए और सामने गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु के साथ हम सामने लेट के सिर पर्स नीचे रख के, और हम लोग सो जाते थे। उस समय कुछ नहीं, और गुरु जी सामने बैठे हैं और हम सो रहे हैं। हम अब ध्यान में आता है, हे भगवान थैंक यू, दुनिया का बादशाह, दुनिया का परमात्मा, दुनिया का पालनहार बैठा हुआ है तुम्हारे, मैं सो रही हूँ और वो हमारी रक्षा कर रहा है। इससे अच्छा एक्सपीरियंस दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नो बड़ी ब्लेसिंग्स दियो गुरु जी, और सब दी रक्षा करो। सब नो इतना दो चोलियां पर के, जेड़ा भी तोड़े चरना विच सिर झुकाए वो खुशी नाल उठ के आ जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी।